بھائیوں، ہماری طرف سے سب کو السلام علیکم، اور ہندو بھائیوں کو نمستے۔ ہم آپ لوگ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم بند کر دیجیے پلیز۔ آدمیوں کا روز کا کمانا ہے، روز کا کھانا ہے غریب لوگوں کا۔ بچپن میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو سب سے پہلے جن گڑ من گڑ نایک جیا ہے بھارت بھاگ ودھاتا، پنجاب اتر گجرات مراٹھا منگل ہماچل جمنا گنگا اچل چلک ترنگا، تد سمنا پہ جاگے تد سمنا پہ جاگے، جیا ہے جیا ہے جیا ہے۔ اور جب اپنے اسلام میں پڑھے جاتے تو لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو دعا پڑھائی جاتی ہے۔ کم سے کم ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہمیشہ 100 میں 80% ہندو لوگ۔ وشکرما پوجا میں ہم لوگ ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں، کھیلتے ہیں کودتے ہیں، ہولی میں بھی ہولی کھیلتے ہوئے رنگ بھی لگاتے ہیں۔ ہندو بھائی لوگ بھی ہماری عید میں آتے ہیں، کھیر سمائیاں کھاتے ہیں، جو کھانا پینا وہ کھاتے پیتے ہیں۔ کبھی آج تک ہم لوگوں میں ہندو مسلم نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی دھرم ہے آپ اپنے دھرم میں خوش رہیے۔ کیا فائدہ کسی سے زبردستی بلوائیے رام یا اللہ اکبر، سب غلط ہے۔ اگر کاش ہم ہندو کیا پیدا ہو گئے تھے تو ہم بولتے تھے رام جی کی جے۔ مسلمان کیا پیدا ہو گئے تو اللہ اوپر والے نے جس کو جہاں جنم دیا ہے، ہندو مسلم کچھ نہیں، سب بھائی یہاں پر۔ ہم باہر بھی جا چکے، الجیریا ساؤتھ افریقہ جا گئے، ہمارے ساتھ 5 ہندو گئے تھے اور ہم 2 مسلم گئے تھے، 2 مسلم 5 ہندو۔ ہم لوگ ساتھ میں کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، خوش رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے یہ نہیں کہا نہیں یہ ہندو ہے اس کو نماز پڑھو، یا یہ مسلم ہے تو اس کو مطلب رام جی کا نام لیجیے۔ پردیش میں کچھ نہیں، جو چکن مٹن کھاتا ہے بس چکن مٹن کھائے، جو اپنا شاکاہاری ہے سبزی دال روٹی چاول وہ دال روٹی چاول کھائے۔ وہاں کسی سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ کھائیے وہ کھائیے۔ ساؤتھ افریقہ، بحرین، دبئی، کویت، الجیریا اور کتنے ایسے دیش ہیں کہ ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، 15 20 سال ودیش میں، سعودی دبئی میں کویت میں آدمی بتا دیا۔ کچھ ہمارے دوست بھی ہیں الجیریا میں، ساؤتھ افریقہ میں، دبئی میں، سعودی میں، ہر جگہ۔ ان لوگوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم اللہ اکبر بولو۔ ایک بھی انسان ہم کو بتا دے، کیونکہ ہم رہ کے آئے دیش تو ہم سب جان چکے ہیں۔ وہاں کی گورنمنٹ وہاں کی سرکار یہ نہیں بولتی آپ اللہ اکبر بولو، یا نہیں تم یہ کھا رہے ہو مسلمان یہ کھا رہا ہے تو تم کو بھی کھانا پڑے گا، نہیں، ایسا کہیں کچھ نہیں۔ جو آپ کو کھانا اچھا لگے آپ کھائیے، اور جس کو نہیں سمجھ میں آتا آپ اس کا کمپنی پیسہ دیتی ہے، آپ اپنا بنائیے کھائیے، اس کے لیے بھی ساری سویدھا دیتی ہے۔ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بھی جو ہندو مسلم محمد کا نام جو میں محمد کلیم بچپن سے بتایا گیا ہم لوگوں کو کہ محمد کی امت میں ہے۔ تو اگر جسے ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، امی آئی لو یو، ماں آئی لو یو، باپا آئی لو یو، بھائی یا بہن کا محبت، ویسے محمد کی بھی امت میں ہے ہم لوگ، تو اپنی محمد سے اگر کوئی آئی لو یو لکھ دیا تو کیا غلط ہے؟ تو محبت ہے، کسی سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں، بھگوان سے کرے ظاہر، اللہ سے کرے ظاہر، محبت ہے یہ۔ اس میں اتنی سی بات پہ اتنا بوال ہو رہا ہے، یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ باہر بھی کتنے لوگ دبئی، سعودی، کویت، بحرین، ہم صرف ایک ہی بار گئے ہیں الجیریا، لیکن ہم لوگ کو بقرعید میں بکرا بھی ملا تھا، 2 بکرے ملے زندہ، اور بنوا کے کاٹنے کے لیے آیا تھا، لیکن 5 ماہ سے 3 ہندو بھائیوں نے ہمارے لوگ کے ساتھ کھایا۔
दो भाइयों ने नहीं खाया कि कुर्बानी का नहीं खाते, ठीक है, मत खाइए। तो उसके लिए जो है उनके लिए अलग खाना आया था, आप लोग जो खाइए वो आया था। अब क्या बताएं, हम लोग बचपन से हम लोग को यही इसको में पढ़ते यही सिखाया गया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम गुलगुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा। कुछ लोग होते हैं बेरोज़गार, जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता, जो हराम के खाने छोड़ते हैं, वही सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो हमको 4 पैसे मिले। जिनका रोज़ का कमाना खाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे क्या है, बेचारे रिक्शा चला रहे, साइकिल चला रहे, लेबरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने लड़ाई झगड़ा झंगा ये सब बंद कर दीजिए प्लीज़। उन लोग के गरीबों के बारे में कुछ सोचिए। मोदी सरकार ने भी बहुत किया है, जिन गरीबों के पास घर नहीं था उसने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, मुसलमान को भी कॉलोनी दी, जिनको पैसा नहीं था उनको 2.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया भी दिया। और यहाँ तक कि 1-2 खेत मुसलमानों को हमारे सामने रिश्तेदारों को हमारे, उनको भी खेती का करने दिया कि खेती करो अपना। सरकार ने तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, हम तो फिर कहेंगे उसने हिंदू मुस्लिम सबको पैसा दिया, सबको खेती करने को दिया, हमको भी दिया। सरकार को गलत नहीं कहा गया। कुछ लोग अरे जय श्री राम लिख दिया, लो, अरे मोहम्मद आई लव यू लिख दिया। ऐसा हम लोग साथ में उठते हैं, बैठते खाते। होली में आप लोगों ने फ़ोटो देखा होगा हमारा, होली में भी होली खेलते हैं, कलर खेलते हैं, गणेश जी निकलते तो डांस वांस हम लोग करते हैं। कम से कम हम लोगों में आपस में मोहब्बत बनी है तो बनी रहने दीजिए। यहाँ से लेकर अभी बाहर तक के लोग हमको जानते हैं, सब हिंदू दोस्त हैं, बुलाते हैं कलीम भाई आ जाओ, कलीम भाई आ जाओ। नहीं यार, चटनी रोटी कमा रहे, खा रहे, अपना बीवी बच्चों के साथ आएंगे, अपना इंडिया में रहेंगे। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है किसी से भी, आप अपने कोई भी धर्म हो। आप अगर मुसलमान क्या पैदा हो जाओ तो आप अल्लाह का नाम लोगे, अगर हिंदू क्या हो जाएंगे तो राम जी का नाम लेंगे। भाई अपने किसी को भी चाहने वाले को आप आई लव यू लिख दीजिए, मोहम्मद लिख दीजिए, इसमें कोई गुनाह कोई गलत नहीं है। अगर हमारी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। प्लीज़ हम लोगों में मोहब्बत बनी लेने दीजिए। अब कुछ फोरमैन ऐसे भी हो गए कि मुसलमान का नाम सुन के नौकरी नहीं देते। बीच में हमारी नौकरी चली गई थी, एक हमारे दोस्त ने, हिंदू दोस्त ने बात करी, हिंदू दोस्त ने बात करी, वो भी शायद हमारा ये वीडियो सुनेगा, तो हमारा नाम बता दी गया कलीम खान। कलीम खान का नाम हमको नौकरी नहीं मिली। अब बताइए, नाम से हमको नौकरी नहीं मिली। फिर भी मालिक का करम है, ऊपर वाला ऊपर भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। नौकरी मिली, फिर कर रहा हूँ। अभी कोई 1-2 लाख की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास नहीं है बीवी बच्चों को लगाने के लिए। गरीब का आदमी कहाँ लाएगा? कम से कम जो इंसान कमा खा रहा है, जिसमें कमाने खाने दीजिए। और अपनी मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, वैसे हर चीज़ की मोहब्बत होती है। भाई यही कहेंगे हम सारे, जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा, इस गुलगुले है इसके गुल से था हमारा। बचपन से ये भी सिखाया गया हम लोगों को, एक अपना हिंदू से तानिश है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये फेसबुक देखते तो हमें देखने का मन ही नहीं करता, हटा देते, सर में दर्द होने लगती। क्या है, कोई अगर प्यार से लिखे दे रहा तो उसको जेल। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है किसी से भी हो। अगर किसी को हमारी बात बुरी लग रही हो तो उसके लिए भी हम माफ़ी कह रहे हैं। बाकी आप लोग खुद जानते हो कि किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। आप क्या नाम, किसी का भी नाम हम लिख दीजिए आप, या मोहम्मद या जय श्री राम, प्यार से आप कुछ भी लिखिए ना, मोहब्बत या अल्लाह भगवान
सब एक ही है, सबका मालिक एक ही है। मरने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का मालिक कौन है। जिंदा में तो पता नहीं चलेगा, मरने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग का मालिक कौन है। अल्लाह भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, हम लोगों ने तो देखा नहीं। प्लीज़ आप लोग ये जो भी हो, सब जो मुसलमान है वो अपने नबी का नाम लिख रहे हैं, मोहम्मद आई लव यू लिखना दीजिए भाई, वो उनका नबी है। और कम से कम हम लोगों में दोस्तों में आपस में मोहब्बत बनी लीजिए। वो लोग भी मजाक उड़ाते हैं, वह देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है। प्लीज़ आप लोग सब बंद कर दीजिए बिल्कुल। ये चंद पैसों के लिए, चंद वोटों के लिए सब होता है। चंद पैसे चंद वोटों के लिए। और जो बेरोज़गार है, जिनके पास हराम के खाने की आदत है, मेहनत से कमा नहीं करते, खा नहीं सकते, वही ऐसा करेंगे। अच्छे इंसान, अच्छे लोग नहीं करेंगे। मोहब्बत है किसी से भी हो सकती, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत। हम क्या डांस नहीं करते, क्या मंदिर में खाना खाने नहीं जाते, क्या विश्वकर्मा पूजा में खाना नहीं खाते? सब खाते हैं भाई, दोस्त यार हम लोग खाते हैं पीते हैं। लेकिन हमने विदेशों में देखा ऐसा नहीं है। अब जो हमने देखा है, जो हमारे साथ 5 लोग गए थे, 2 हम मुसलमान गए थे, 5 में वहाँ पर कोई वैसा नहीं, कुछ नहीं। अपने इंडिया में हम लोग हर जगह तारीफ़ करते हैं, इंडिया से अच्छा कोई देश नहीं है। चटनी रोटी भी इंडिया की सुकून की है। बात पड़ेगा कभी हिंदुस्तान के लिए तो मुसलमान ही सबसे आगे खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हुई है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहिए। तो ये चाहिए आपस में मोहब्बत बना के रखिए, और अपनी मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत। जो इंसान जहाँ पैदा हो गया हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब जैसा बचपन से बताया जाता, बेटा तुम मुसलमान हो, चलो नमाज़ पढ़ ले, आदमी नमाज़ पढ़ने लगे। तुम हिंदू हो, चलो भगवान जी की मंदिर में पूजा करें। जो सिख है वो अपना जो सरदार जी है वो अपने गुरुद्वारे में। कम से कम ऊपर वाला सबको बनाया इंसान बनाया। सबका खून लाली है, किसी का खून पीला या नीला या हरा या नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। और जिस दिन एकता को हर इंसान तोड़ने की कोशिश करेगा, उस दिन ही अपना हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ हिंदुस्तान में एकता है, ये एकता बनी रहनी चाहिए प्लीज़।